The chief conclusion from the previous chapter is that the appearance, structure, physiology, and behavior of any plant or animal, in short its phenotype, are determined by the interaction of its genotype with the environment. It is now logical to inquire into the nature and composition of the genotype, which plays such a fundamental role in the phenomena of how plants, animals, bacteria consist of genes. Because of the apparently universal applicability of the gene theory, the gene may be regarded as fundamental unit of life. Now we determine the gene as fundamentality of life. We studied Mendel's law. First of all, we study law of segregation. Historically, the first and still the most conclusive evidence of the existence of genes come from the phenomena of segregation of trait observed in the offspring of hybrid between individuals or strain which differ in some recognizable respect. The principle of segregation was formulated by Gregor Mendel in 1865. This principle, which is now recognized as among the most important in biology, was formulated under such peculiar conditions that the scientific world failed to recognize or to appreciate it until after a lapse of 40 years. In the first place, Gregor Mendel was not primarily a biologist but a monk in the monastery at Brunn, Austria. He had come as a poor boy to the monastery, was ordained priest in 1847, and in 1851 was sent by his order to study natural science at the university in Vienna. He was not a brilliant scholar in physics or mathematics, but it is quite clear from his published work that he had an unusually clear and logical mind. He returned to Brunn as a teacher of science in 1853, and in 1857 he began to collect and observe the numerous varieties of the garden pea which seedmen offered for sale. After observation and experiment carried on its monastery garden for 7 years, he obtained the answer he had sought and presented the result of his hybridization experiment together with the generalization which we now known as Mendel's law at two meetings of Natural History Society of Brunn in the spring of 1865. The result and the theory was printed in the annual proceedings of the society, which appeared and were distributed to libraries in Europe and America in 1866. It is safe to say that no one who heard Mendel's paper and no one who read it in the 19th century appreciated its significance, for it lay neglected until 1900, when suddenly the law of segregation was rediscovered almost simultaneously by 3 different investigators who had obtained results like Mendel's. These 3, De Vries in Holland, Correns in Germany, and von Schmerich in Austria, found Mendel's forgotten paper and proclaimed its importance. Immediately, Mendel's conclusion began to be confirmed and extended by experiment carried on various parts of the world on many kinds of animals and plants. There are different terminologies explained by Mendel's study. Gregor Mendel studied inheritance of 7 traits in pea plant and first used the term of dominance and recessiveness. Genes come in different versions or alleles. A dominant allele hides a recessive allele and determines the organism's appearance, you can say phenotype. Propose similar but separate inheritable character, one from each part, later to call genes. Inheritance mean parent and offspring often share observable traits. Mendelian inheritance or Mendelian genetics or Mendelism is a set of primary tenets relating to the transmission of hereditary characteristics from parents' organisms to the offspring. It underlies much of genetics. So what is allele? Allele are the other form of gene present on homologous chromosome at a particular gene locus. Traits are controlled by alleles. The dominant allele masks the expression of other allele that we call recessive allele. Genotype refer to the allele an individual receive at fertilization. At fertilization, that allele reaches to the offspring, it's called its genotype.
and what is the appearance of this genotype is phenotype, the physical appearance of the individual. Homozygous mean an organism has two identical allele at a gene locus. For example, a chromosome has two allele और जो भी उसके ऊपर जीन है वो दोनों सिमिलर हैं. Heterozygous mean an organism has two different allele at a gene locus. कि अगर एक क्रोमोसोम है उसके ऊपर जीन लोकस मीन जहाँ पे जीन जाके अटैच होता है, ठीक है. तो एक अलील का एक जीन, दूसरे अलील का दूसरा जीन, अगर वो दोनों डिफरेंट हैं तो वो हेट्रोजाइगस हैं, अगर वो दोनों सेम है तो वो होमोजाइगस हैं. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ F1 जनरेशन. F1 जनरेशन जो होती है वो फर्स्ट जनरेशन होती है जो हम पेरेंटल से ऑफस्प्रिंग में आती है, ठीक है. द हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग ऑफ द पेरेंटल जनरेशन से हम फर्स्ट जनरेशन कहते हैं, ठीक है. F2 जनरेशन द सेल्फ फर्टिलाइज प्रोगनीज ऑफ F1 जनरेशन, और जो रिजल्टेंट हमें F1 जनरेशन से आते हैं उसकी आगे से हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराते हैं, उसके रिजल्टेंट में जो जनरेशन आती है उसे हम F2 जनरेशन कहते हैं. व्हाट इज़ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अ क्रॉस बिटवीन पेरेंट डिफरिंग इन ओनली वन ट्रेट और करेक्टरिस्टिक. जब हम सिर्फ पेरेंट्स के एक करेक्टरिस्टिक को स्टडी कर रहे हैं और वो जो ऑफस्प्रिंग में जा रहा है या जो उनकी आगे फर्दर ट्रेट में जा रहा है तो उसे हम मोनोहाइब्रिड कहते हैं. और अगर हम दो ट्रेट्स को स्टडी कर रहे हैं एट अ टाइम तो उसे हम डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं. व्हाट इज़ टेस्ट क्रॉस, अ क्रॉस ऑफ F1 हाइब्रिड टू रिसेसिव पेरेंट टाइप, और इसको हम डिटर्मिन करते हैं वेदर एन ऑर्गेनिज्म विद अ डोमिनेंट फिनोटाइप इज़ होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस. टेस्ट क्रॉस हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम डिटर्मिन कर सके कि जो ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग है उसमें डोमिनेंट फिनोटाइप गई है, होमोजाइगस गई है कि हेट्रोजाइगस गई है. पुनेट स्केयर इज़ शो मेटिंग ऑफ टू पेरेंट एंड पॉसिबल ऑफस्प्रिंग दे प्रोड्यूस. ये साइड पे जो एक स्केयर बना हुआ है और उसके जो जीन्स और लील्स हैं ये शो करते हैं. पुनेट स्केयर कंप्लीट को कहते हैं, और इसको हम यूज़ करते हैं कि हम प्रिडिक्ट कर सके जीनोटाइप क्या है और फिनोटाइप क्या है, कि कौन सी जीन्स गई हैं और उसने क्या फिजिकल अपीयरेंस शो किया. इसके लिए हम पुनेट स्केयर बनाते हैं. सो व्हाई ही चूज़ पी प्लांट. पी प्लांट एक तो इजीली एक्सेसिबल था. फ्लावर स्ट्रक्चर ऑफ पी इन शॉर्ट सेल्फ पोलिनेशन. जो पी के फ्लावर्स हैं वो सेल्फ पोलिनेशन कर सकते हैं. उसमें वेल डिफाइंड मेल एंड फीमेल पार्ट्स होते हैं. सिंगल सीजन क्रॉप है. पोलिनेशन ऑफ पी इज़ क्वाइट ईजी. रिप्रोड्यूस सेक्चुअली इन द वेराइटीज़ अवेलेबल. सेवरल कैरेक्टर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म विच वर ईजीली डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर. इसका मतलब है कि उनके पास जो थे वो वेराइटीज़ अवेलेबल मतलब अलील्स अवेलेबल थे, ठीक है, और वो टू ही थे, या डोमिनेंट है या रिसेसिव है, ठीक है. आप कह सकते हैं या कैपिटल ए है या स्मॉल ए है. तो उसको स्टडी करना इजी था और उसको डिस्टिंग्विश करना इजी था. दैट्स वाई ही चूज़ पी प्लांट. द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी प्लांट और यू कैन से ट्रेट्स ऑफ पी प्लांट ही स्टडीज इंक्लूड फ्लावर कलर. आइदर फ्लावर जो था पी प्लांट का वो पर्पल था या वाइट था. फ्लावर पोजीशन या एक्सियल थी या टर्मिनल थी. स्टेम लेंथ जो थी वो या टॉल थी या ड्वार्फ थी. सीड शेप राउंड था या रिंकल था. सीड कलर येलो और ग्रीन था. पॉड शेप इन्फ्लेटेड थी और कंस्ट्रिक्टेड थी. पॉड कलर ग्रीन था या येलो था. ये 7 ट्रेट थी जो उसने स्टडी की थी, और आप देख सकते हैं कि हर 7 ट्रेट का जो 2 पॉसिबल थिंग्स है, ठीक है. तो इस तरह डिस्टिंग्विश करना इजी है. या तो फ्लावर पर्पल होगा या वाइट होगा, तीसरी कोई ऑप्शन नहीं है. सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट उसने किया था, उसने क्या किया था, पर्पल फ्लावर के जो स्टेमन्स थे वो रिमूव कर दिए थे. क्यों रिमूव कर दिए थे? स्टेमन्स होते हैं वो मेल पार्ट होता है ताकि वो सेल्फ पॉलिनेशन ना कर सकें, ठीक है, और जो कार्पल होता है वो फीमेल पोर्शन होता है. तो उसने कि सेम सेल्फ पॉलिनेशन ना कर लें पर्पल फ्लावर, तो उसने क्या किया था कि उनकी फर्टिलाइजेशन होने से पहले ही उसने स्टेमन्स रिमूव कर दिए थे, और फिर उसने वाइट फ्लावर के जो स्टेमन्स थे वो जो हैं वो पर्पल फ्लावर में जो है वो इम्प्लांट किए थे. उसके बाद जो मेच्योर पॉट बना था और जो फ्लावर आए थे तो उसने जब एग्जामिन किया तो सबके सब फ्लावर जो थे वो पर्पल थे. तो इस तरह से जो सबसे पहले उसने लॉ रखा था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस का, क्योंकि उसने अगर वाइट फ्लावर का स्टेमन लगा दिया था तो फिर वाइट की भी तो कुछ रेशो होनी चाहिए थी, लेकिन सबके सब जो फ्लावर थे वो पर्पल इन कलर थे. ऐसा क्यों था?
One of the first facts brought out by Mendel's experiment was that two members of a given pair of contrasting characteristic in case of flower is contrasting characteristic क्या था, white था या purple था. When brought together in a cross, जब हमने एक purple flower को और एक white flower का cross किया, differ markedly in their ability to express themselves in the resulting hybrids offspring. When he crossed the pure breeding purple flower plant with the pure breeding white flower one, the progeny were found to resemble the purple flower parent. होना तो ये चाहिए था कि कोई रेशो आती, 1 आती, हाफ आती, 2 आती, जो भी आती, 50% आता, 100% आता, वाइट आता, लेकिन यहाँ पे जो प्रोगनी आई वो 100% पर्पल इन कलर आई. नो वाइट फ्लावर प्लांट एंड नो इंटरमीडिएट अपेयर. He knew that whiteness had not really been eliminated, for in the subsequent generation white flower plant cropped out again, but in a hybrid itself whiteness seemed to be suppressed or to recede from view and purpleness to dominate. So law of dominance states that every gene has two alleles that can code for a trait. One allele is dominant, meaning it always shows. One allele is recessive, meaning it will be masked by the presence of the dominant allele. मतलब कि एक डोमिनेंट allele होती है, एक रिसेसिव allele होती है. इन केस ऑफ फ्लावर जो पर्पल allele थी वो डोमिनेंट थी और जो वाइट allele थी वो रिसेसिव थी. तो ये चॉइस के ऊपर होता है कि उसने कौन सी ट्रेट शो की. अब ये ज़रूर उसने फिनोटाइप उसकी पर्पल थी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसकी जीनोटाइप भी सारी डोमिनेंट वाली हो. कुछ हेट्रोजाइगस कंडीशन भी तो हो सकती है ना. सो इस चीज़ ने फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है उसको प्रमोट किया था. लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑब्जेक्टिफाइड व्हेन the concept of codominance, incomplete dominance and overdominance are represented. What is codominance? Codominance occur when two alleles of the same gene are present in a living thing or both are expressed. ठीक है, अगर एक फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको दो बर्ड शो किए हैं, एक ब्लू इन कलर है, एक वाइट इन कलर है. तो जो रिजल्टेंट प्रोगनी आई है या ऑफस्प्रिंग आया है उसमें वाइट कलर भी है, उसमें ब्लू कलर भी है. तो कोडोमिनेंस की सिचुएशन है. नेक्स्ट वन इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है कि जो दोनों अलील हैं वो दोनों ही एक्सप्रेस नहीं होती, ठीक है, और रिजल्टेंट कुछ और होता है, थर्ड कंडीशन आ जाती है. फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको एक रेड फ्लावर दिखाया, एक वाइट फ्लावर दिखाया है, तो जो रिजल्टेंट फ्लावर है वो पिंक इन कलर है, ठीक है. एंड ओवर डोमिनेंस मीन्स कि जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है वो डोमिनेट कर जाती है, होमोजाइगस कंडीशन जो है वो रिसेसिव हो जाती है. तो इसे हम कहते हैं ओवर डोमिनेंस. इन तीन चीज़ों के कॉन्सेप्ट ने डोमिनेंस का जो लॉ था उसको ऑब्जेक्टिफाइड कर दिया था. सो व्हाट इज़ मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? The Mendel proposed that a normal somatic cells had two alleles for a Mendelian trait. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि एक ट्रेट के दो अलील हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्लावर पर्पल है या वाइट है, सीड कलर येलो है या ग्रीन है, तो ये टू अलील्स हैं. अ गमीट कंटेन वन अलील रैंडमली चूजन फ्रॉम द टू सोमैटिक सेल. और जो उन सोमैटिक सेल के रिजल्टेंट से गमीट फॉर्मेशन होती है, स्पर्म, एग, पोलन, ओव्यूल, जो भी, तो उसमें वो रैंडमली चूज़ करता है कि कौन सी अलील वो लेगा. वो डोमिनेंट लेगा या वो पर्पल कलर की लेगा या वाइट कलर की लेगा, येलो सीड कलर लेगा या ग्रीन कलर लेगा. फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव वन अलील फॉर ब्राउन आइज एंड वन फॉर ब्लू आइज, कैपिटल लेटर शोज डोमिनेंट अलील एंड स्मॉल बी शो रिसेसिव अलील. और जो डोमिनेंट होती है कैपिटल होती है उसको हमेशा पहले लिखते हैं. So if you have one allele for brown eyes and for blue eyes small b, somatic cell have capital B and small b, and each gamete will carry one of B, capital B और small b chosen randomly. ठीक है, बेसिकली जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट था वो रैंडमाइजेशन का कॉन्सेप्ट था. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, द सेपरेशन ऑफ अलील इनटू सेपरेट गमीट. डिफरेंट पोस्टुलेट कह सकते हैं आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के थे.
First one is each individual has two factors for each trait. The factors segregate or separate during the formation of gametes. Each gamete contain only one factor from each pair of trait. एक trait का एक ही allele ले सकता है एक gamete. Fertilization give each new individual two factor for each trait. In contrast with the uniformity of first generation hybrid, जो कि हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस से पता चले थे कि जब हम फर्स्ट जनरेशन की हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन आती है वो सेम होती है. सब प्लांट पर्पल आए थे. प्रोड्यूस बाय सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑफ F1 पर्पल फ्लावर प्लांट कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट. पर्पल वन लाइक द purple grandparent and white one like the white grandparent. No other kind of plant appeared, that is none were found with dilute purple flower or pink or rose or other intermediate shade. In succeeding generation these same two type of flower color maintain their distinctness. मतलब कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसका कंसेप्ट नहीं आया था, ठीक है, जब उसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए जब फर्स्ट जनरेशन आई थी और फिर उसने फर्स्ट जनरेशन की सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराई थी, ठीक है. और उस सेल्फ फर्टिलाइजेशन के दौरान जो F2 जनरेशन आई थी उसमें या तो रेड पर्पल फ्लावर आया था या वाइट फ्लावर आया था और कोई ट्रेट शो नहीं हुई थी, ठीक है. जिस तरह अगर मैं आपको ये वाली डायग्राम एक्सप्लेन करूँ, इसमें है जो फ्लावर है वो टॉल है, ये शॉर्ट है. जो टॉल है वो कैपिटल T को शो कर रहा है, जो स्मॉल है वो स्मॉल t को शो कर रहा है, ये ड्वार्फ है, ठीक है. जब उसने फर्स्ट क्रॉस कराया था तो जो सारी जनरेशन आई थी उसके रिजल्टेंट में जो फर्स्ट जनरेशन आई थी उसमें सब कैपिटल T और स्मॉल t आई थी, ठीक है. और जो कैपिटल T थी वो डोमिनेंट कर गई थी, स्मॉल t रिसेसिव हो गई थी, तो जो सारी जनरेशन थी वो टॉल आई थी, ठीक है. अब उसने जो कैपिटल T और स्मॉल t वाली हेट्रोजाइगस कंडीशन आई थी उसकी सेल्फ पॉलिनेशन कराई थी. जैसे कि आप देख रहे हैं मुझे कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है. जब उसने कैपिटल T स्मॉल t और कैपिटल T स्मॉल t की सेल्फ रेप्लिकेशन कराई है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराई, तो जो F2 जनरेशन रिजल्टेंट में आई तो उसमें 3:1 आई. 3:1 कैसे आई? क्योंकि उसमें जो तीन हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स थे आप कह सकते हैं, या तीन प्रोगनी थी, उसमें जो डोमिनेंस थी वो टॉल वाली अलील ने शो की थी, और जो रिसेसिव थी वो एक होमोजाइगस कंडीशन थी जिसमें दोनों स्मॉल t थी और वो ड्वार्फ थी. ये हो गई उसकी फिनोटाइप 3:1, ठीक है. लेकिन अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो 1:2:1 आई. क्यों? क्योंकि 1 वो थी जिन्होंने दोनों सेम अलील शो की थी, ठीक है. होमोजाइगस कंडीशन थी, कैपिटल T इट्स होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है. फिर नेक्स्ट इज कैपिटल T स्मॉल t, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ठीक है. इसमें जो जीन्स थी वो दोनों प्रेजेंट थी लेकिन जो डोमिनेंस थी वो कैपिटल T की थी. दैट्स वाई जो जीनोटाइप है वो डिफरेंट होती है, फिनोटाइप डिफरेंट होती है. फिनोटाइप हम तब डिटर्मिन करते हैं कि कौन सी जीन ने डोमिनेंसी शो की, ठीक है. तो कैपिटल T वाली जीन ने डोमिनेंसी शो की स्मॉल t के ऊपर, तो जो फिनोटाइप थी वो आ गई टॉल प्लांट्स की, लेकिन जीन्स में उसके पास दोनों थी, ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन थी. थर्ड वन में भी यही ट्रेट शो हो रहा है, और जो फोर्थ वन है उसमें दोनों स्मॉल t हैं, ठीक है. तो ये भी होमोजाइगस कंडीशन है लेकिन ड्वार्फिज्म शो कर रही है, छोटे प्लांट शो कर रही है, तो इसलिए ये 3:1 है. जो ये डायग्राम है ये शो कर रही है सीड कलर की. अब सीड कलर के लिए दो अलील्स हैं, या येलो एक ट्रेट है कलर, उसकी दो अलील्स हैं येलो और ग्रीन. जो येलो है वो डोमिनेंट है, जो ग्रीन है वो रिसेसिव है. ये कैसे पता चला? कि जब उसने फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे फ्लावर के लिए किया था वैसे ही सीड के लिए उसने एक येलो सीड था एक ग्रीन सीड था, ठीक है. उनकी कराई क्रॉस पॉलिनेशन. उस क्रॉस पॉलिनेशन के रिजल्टेंट में जो F1 जनरेशन आई उसमें सारे सीड जो है वो येलो आए, ठीक है. अब उन येलो सीड्स की उसने सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराई, सेल्फ पॉलिनेशन कराई, या आप कह सकते सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराई, तो उसमें भी 3:1 आई. जैसे मैंने टॉल और ड्वार्फ वाले में बताया इसी तरह इसमें 3 येलो आए 1
ग्रीन आया। ग्रीन क्यों आया? क्योंकि उसमें दोनों स्मॉल सी वाली जीन्स थी, जैसे पीछे बताया। पीछे जो मैंने आपको मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड की डेफिनेशन बताई थी कि मोनोहाइब्रिड होता है कि जब हम पेरेंट्स के दरमियान ओनली एक ट्रेट और करेक्टरिस्टिक को स्टडी करते हैं तो उसे हम मोनोहाइब्रिड कहते हैं। जैसे इस एग्जांपल में फीमेल है और मेल है और उनके ऑफस्प्रिंग की ब्राउन और वाइट होने की जो चांसेस हैं उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो जब उन्होंने जो कैपिटल एफ और स्मॉल एफ और स्मॉल एफ, ठीक है, जो जीन्स थी उनको आपस में क्रॉस कराया तो जो चांसेस थे बेबी के ब्राउन और वाइट होने में वो 50% चांसेस थे। मतलब 50% ब्राउन बेबी हो सकता है, 50% वाइट बेबी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डाईहाइब्रिड, और वो कंडीशन जिसमें हम टू ट्रेट्स को और करेक्टरिस्टिक को साइमल्टेनियसली स्टडी कर रहे होते हैं। जैसे कि इसमें डाईहाइब्रिड में उन्होंने राउंड और रिंकल, येलो और ग्रीन सीड के दो करेक्टरिस्टिक को उन्होंने स्टडी किया है। या सीड का कलर ग्रीन और येलो हो सकता है, या सीड जो है वो राउंड और रिंकल्ड हो सकता है। मतलब अपीयरेंस और कलर, इन दो ट्रेट्स को साइमल्टेनियसली स्टडी किया है तो इसे हम डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, ठीक है। तो उसमें जो रेशो है वो 9:3:3:1 है। मतलब 9% चांसेस हैं कि जो सीड है वो राउंड और येलो होगा, 3% चांसेस है जो सीड है वो राउंड और ग्रीन होगा, 3% चांसेस है रिंकल्ड या येलो होगा, और 1% चांसेस है कि रिंकल्ड और ग्रीन होगा। अब इसमें जो फिनोटाइपिक रेशो थी वो 9:3:3:1 थी, ठीक है। इस टेबल में जो मेंडल ने 7 करेक्टरिस्टिक स्टडी किए थे पी प्लांट के, उनको समराइज़ किया गया है, ठीक है, उनके क्रॉस को। ऐसा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लगा दिया था। अब जो पीछे लेक्चर मैंने सारा दिया है उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आई थिंक 3 है या 2 हैं, 3 है। इनको आपने सॉल्व करना है और मुझे इनका मैसेज, इनके आंसर टेक्स्ट करने हैं और विद एक्सप्लेनेशन। चीटिंग की ज़रूरत नहीं है, अगर समझ नहीं आएगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है।